Good morning dear children, welcome back again. Today we will discuss about how metals and non-metals react to each other. Okay, compounds like magnesium chloride or sodium chloride or any compounds in which metals and non-metals both are present, how they will react to each other. In previous videos we have discussed about physical properties and chemical properties of metals and non-metals. Okay beta, so after physical and chemical properties, that topic, these three topics only will come in exam, and rest of topic how metals and non-metals obtain or occurrence, that topic will not come in exam. Okay beta, so जो टॉपिक्स एग्जाम में आ रहा है उस पर आप अच्छे से फोकस करो. बिफोर वी विल स्टार्ट हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू ईच अदर, few things that we have seen in 9th standard as well as in 5th lesson that we will discuss here. Take metal beta, some metals like sodium. Okay, sodium, atomic number of sodium is 11 beta. As you know that atomic number of sodium is 11. Okay, so tell me children, number of electron and protons present in sodium. Sodium contains 11 electron as well as 11 proton. Protons have positive charge and electrons have negative charge with the same quantity, same unit के साथ. Okay, अगर एक यूनिट निगेटिव चार्ज है तो ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. इट्स मीन दैट सोडियम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेम चार्जेस है. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम विल बी 2, 8, 1. इट्स मीन दैट इन फर्स्ट शेल दैट इज द K, second shell L, third shell M. Okay, KLMN that you have seen in the Bohr's atomic model in 9th standard beta. So हमें पता है कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड में 8. ओके, सो ऑन. ये चीज़ें आपने देखा था पिछले साल. हियर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन. सो सोडियम एटम, दैट इज द सोडियम एटम. Sodium atom is not stable here. Why it is not stable? Stability के लिए एक चीज कंपल्सरी है बेटा. Outer most orbit should contains 8 electron, or you can say that outer most orbit should be completed, filled, inert. Okay, octet. अगर outer most orbit complete होगा तो ही वो एटम स्टेबल होगा. So how can we make sodium stable beta? We have two way. Either sodium donate 1 electron, so then it will be, then it has only 2 orbit K, sorry, two cells only, K and L. So outermost contain 8. Now it is a stable. Or second way, it gains 7 more electrons. That is not possible. You know that for gaining 7 electron, lot of energy is required. It is not possible. So if sodium release 1 electron beta, if sodium release, that is the sodium, थोड़ा इसको और अच्छे से लिखते हैं बेटा. Sodium atom that have 2, 8, 1 have 11 electron and 11 protons. So for making sodium stable we have to remove 1 electron. So if 1 electron is released from the sodium, then now sodium atom will become sodium ion, and that have 2, 8. Electronic configuration is 2, 8. Why? We have removed 1 electron. So here sodium, like that you have to write. Why बेटा ऐसा क्यों लिखना है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन्स
are more than the electrons. Here electrons and protons are equal. हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया. Now outermost complete, outermost stable here. एंड आप याद करो 10th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है बेटा? नियॉन. नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन इज सिमिलर 2,8. सो वी कैन से दैट सोडियम अचीव्ड इनर्ट नियॉन गैस. ओके, जैसे नियॉन गैस का आउटर मोस्ट कंप्लीट होता है, जो नियरेस्ट नोबल गैस है सोडियम के नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज द 10 नंबर दैट इज 2,8. तो इसका भी आउटर मोस्ट कंप्लीट हो गया. एज वी नो दैट नोबल गैस भी स्टेबल होती है, दैट इज अनरिएक्टिव. जो रिएक्टिव होती नहीं है उसका आउटर मोस्ट कंप्लीट होता है. सो यहाँ पे भी अब ये स्टेबल हो गया, दैट इज द स्टेबल बेटा. Why it is stable? Because outermost orbit is filled here, completed here. Okay, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम आयन और कैटायन. पॉजिटिव चार्ज any element that has positive charge that is known as cation, and if it has negative charge then it is known as anion beta. Okay, so here similarly now here sodium is stable. So if we'll take another example for the metal beta, suppose we have magnesium beta. As we know that magnesium electronic configuration is 2,8,2. So here we have to remove 2 electron. Why 2 electron beta? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 है, तो इसको स्टेबल करने के लिए इसका जो नियरेस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 है, तो ये 2 हमें रिलीज करना पड़ेगा बेटा. सो 2 रिलीज कर देंगे. सो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम twice. Okay, 2 plus means now it has 2 protons more than the electron. तो इसके पास total 12 protons and 12 electrons here. After removing the 2 electrons it has 2 protons, 12 protons, but electrons are 10 in number. Okay beta, so that is magnesium ion, and here magnesium atoms are electrically neutral because it contains protons and electron in equal in number. आया समझ में बेटा? Similarly if we talk about negative beta, negative charge और negative ion means non metals बेटा इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, गेन करते हैं. That's why अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल है एंड इफ यू आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्जेस आर इंक्रीजिंग हियर. सो नॉन मेटल में इसलिए नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं एनायन. एंड इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स मीन नेगेटिव चार्ज डोनेट करते हैं, इसलिए उनका पॉजिटिव. सपोज नॉन मेटल्स टेक क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज द क्लोरीन एटम. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 2,8,7. हियर नो नीड टू ड्रॉप आउट 7 इलेक्ट्रॉन्स. हियर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये भी अचीव कर लेगा अपना ऑक्टेट और इनर्ट. सो हियर वी हैव टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन. सो हियर यू हैव टू यूज प्लस साइन. 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2,8,8. सो दैट इज द एनायन और सोडियम आयन. एनायन क्यों? क्योंकि इसके पास जो चार्ज आएगा क्लोरीन के पास वो क्या होगा बेटा? निगेटिव चार्ज होगा. आया समझ में? तो इस तरह से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं बेटा. नाउ बैक टू द टॉपिक. अब इससे रिलेट करते हैं टॉपिक को बेटा. एनी कंपाउंड दैट हैज मेटल एंड नॉन मेटल्स वो कैसे रिएक्ट कैसे करते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड. Before we will move further, there are two type of bond. Ionic bond and covalent bond. About covalent bond हम इसको अगले वीडियो में थोड़ा बहुत देखेंगे, but mostly we will see in next lesson about covalent bond. So here we will focus on only ionic bond, but before that we will move further. What is the difference between ionic bond and covalent bond beta? Ionic bond means ions. Ions means charge. Charges are positive and negatives. So जहाँ पे positive और negative charges से जो bond बनता है that is ionic bond. Means metals and non-metals, positive and negative. So when metals and non-metals react to each other,
the bond is formed, that is known as ionic bond. Or in another way you can say that when one element or one atom transfer the electron and another gains that electron, that type of bonding is known as ionic bond. इसमें मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होता है बेटा. मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन. एंड हियर इन कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज नॉट ए आयोनिक, चार्जेस यहाँ पे नहीं है. ये नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है. देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. हियर वन एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट वन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. इस तरह से होता है आयोनिक बॉन्ड में. सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. तो हमें यहाँ पे बात करना है बेटा आयोनिक बॉन्ड के ऊपर. आयोनिक बॉन्ड, ओके. सो फर्स्ट सोडियम, एज वी हैव सीन दैट सोडियम 2,8,1, if it release one electron it will become Na minus, that is 2,8. Similarly, what about chlorine? That have 2,8,7 beta. If it gains one electron, ये इलेक्ट्रॉन गेन्स कहाँ से होगा, ये जो रिलीज हो रहा है. सो ये हो जाएगा क्लोरीन निगेटिव 2,8,8. इन दोनों चीजों को ध्यान में रखो. नाउ विल डिस्कस अबाउट टॉपिक ओनली. हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बेटा, ओके. सो सपोज टेक अ कंपाउंड इन विच मेटल्स एंड नॉन मेटल बोथ आर प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल सिंपल, दैट इज NaCl. Here we are discussing about NaCl. So NaCl का name means sodium and chlorine. So sodium that has one electron, this is unstable. So when it donate one electron, it is stable now. And after gaining one electron, chlorine भी यहाँ पे अब आपका stable हो गया है बेटा. So sodium donates one electron and chlorine gains one electron. अब इसको हम बेटा दूसरे वे में लिखें. Here सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. इसको डॉट के फॉर्म में हम ऐसे दिखाएंगे. It is given in your textbook, you can see that as well. ये डॉट स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट. ये डॉट का क्या मतलब है, सोडियम हैव वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट, ओके. तो इसके आउटर में ऑर्बिट में कितना है, एक. नेक्स्ट क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर ऑर्बिट. सो 2 हियर बेटा एंड 2 हियर and here only one electron, क्योंकि 7 है उसके आउटर मोस्ट में बेटा. now you can see that 2 2 4 plus 2 6 and 1 7. so ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये क्लोरीन को डोनेट करेगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये चीजें आपको एग्जाम में आएगा बेटा, ये चीजें ध्यान रखना. बेसिक चीज आपको समझना है कि सोडियम that is not as stable because its outer orbit contains only one electron. outer orbit में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो स्टेबल होगा. हियर 7 है, ये भी स्टेबल नहीं है. तो अगर ये एक और गेन कर ले और ये एक लॉस करे तो दोनों स्टेबल हो जाएगा बेटा. हियर सोडियम दैट इज अनस्टेबल, इसके पास कितना है यहाँ पे 2,8,1. हियर 2,8,7. बोथ आर अनस्टेबल. हियर एक इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट में, इसके आउटर मोस्ट में 7 है. अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर कर देगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, नाउ सोडियम पॉजिटिव और इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितना है 2,8. मीन्स बेटा 2,8 मीन्स व्हाट, ये अभी स्टेबल हो गया. सिमिलरली what about chlorine after gaining the one electron. यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया क्योंकि वो डॉट वाला यहाँ से ट्रांसफर होकर इसके पास आ गया. तो इसके पास आप डॉट लगाओ बेटा. हियर 2 डॉट
2 dot, 2 dot, and here 2 dot. That is the dot structure of ions. Ions का dot structure कैसे बनाएंगे वो है. Okay, now chlorine has negative charge, so put here minus. Chlorine has negative charge. ये एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से जो गेन किया वो यहाँ पे आ गया. Now chlorine have 2,8,8. Here you can see that beta sodium 2,8, chlorine 2,8,8. It's mean that now both are stable. You can write like this, or इसको और कैसे लिख सकते हो आप, like that, NaCl इस तरह से लिख सकते हो, और डाल के NaCl लिख सकते हो. तो यहाँ पे इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग हुई है. इसका भी आउटर मोस्ट कंप्लीट है, इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट है. दैट्स वाई ये जो बॉन्ड इनके बीच में होगा, रिलेशन होगा, दैट इज वेरी स्ट्रांग. ओके, ionic bond is very strong compared to the covalent bond. When we will discuss about covalent bond, that time we will see. Here we are discussing about ionic bond only. So both have achieved their inert position, noble position. Means इसका भी outermost complete, इसका भी outermost complete. You can see here. That's why the bond formed between them are very strong. और इनके बीच में bond बहुत strong होगा. इसलिए जब आप properties पढ़ोगे इनका, you will see that properties are given in the right side of your textbook. Right page पे दिया है बेटा. And इनके बीच में जो bonding होगा, that will be a very strong bond. So melting point and boiling point will be very strong. Let's see one more example. So how do metals and non-metals react? You can see here metals donate electron, non-metals receive electron. तो इस तरह से होता है. Okay? एक और एग्जांपल दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो भी देख लो. इस तरह से और भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा. टुमारो अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, हम इस पे ही एक बार और डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट लेसन. सपोज नाउ वी हैव टू राइट हियर अबाउट मैग्नीशियम बेटा. सो मैग्नीशियम, first beta, magnesium will donate 2 electron. Why 2 electron? Its outermost contains 2 electron. So after donating the 2 electrons, magnesium here 2 plus, that is 2,8, that is cation. Similarly chlorine, as we know that outermost of chlorine is 2,8,7, so it will gain 1 electron. So chlorine will be like that 2,8,8. But beta, one problem is here. 2 electrons donate by magnesium and chlorine can take only 1 electron. So what we will do? We have to take 2 atom of chlorine. Why 2 atom of chlorine बेटा? क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, इसके साथ इसका बॉन्डिंग होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा. तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा. आया समझ में? सो वी हैव टू टेक हियर 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम. सो हियर विल बी 2. नाउ प्रॉपर हो गया बेटा. मैग्नीशियम 2. अभी सिमिलरली हम एल्यूमिनियम लेंगे, यार 3 हो जाएगा तो 3 डोनेट करेगा, तो हमें क्लोरीन कितना लेना पड़ेगा? 3. आया समझ में? इस तरह से बॉन्डिंग होती है बेटा. ये 2 इलेक्ट्रॉन, अभी सॉरी 2 एटम, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो यहाँ पे आपका जो क्लोरीन फॉर्म होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं बेटा? क्लोरीन. अब इसके इधर भी 2, 2, 2, 2, 2, इसका 8 अचीव हो गया. ओके, ये पुट 2, 2 एटम ऑफ क्लोरीन हो गया यहाँ पे आपका. आया समझ में बेटा? सो इस तरीके से हमें बताना है. तो अब इसका भी कंप्लीट हो गया, तो 2,8,8 हो गया. दैट इज द 2. यहाँ पे ये 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? दैट इज द 2 एटम. यहाँ कंप्लीट, इधर भी इसका कंप्लीट हो गया. अब इसको एक लाइन में बता दो कैसे. मैग्नीशियम दैट इज 2,8,2. ओके, सो यहाँ पे आपको 2 डॉट डाल सकते हो बेटा. 2 डॉट मीन्स व्हाट? आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है. ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको?
क्लोरीन को। तो अब यहाँ पे हम क्लोरीन के 2 एटम लेते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट होगा। सिंपल, इस तरह से आप स्ट्रक्चर दिखा सकते हो। पुट हियर 2 2 2, हियर 2, बुक में दिया, अच्छे से देख लो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यार आपका इधर एक है, इधर 2 बेटा, इजी टॉपिक है, हार्ड नहीं है। एक इधर दे देगा इसको, यहाँ पे आप लिख लोगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका मैग्नीशियम यहाँ पे आपका 2+ हो जाएगा एंड क्लोरीन और यू कैन राइट हियर, इसके बाद आप नीचे लिख सकते हो MgCl2। ये तो यहाँ पे हमारा जो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है बेटा, 1 मिनट, ओके नाउ। सो हियर मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म, हमें 2 एटम लेना है, वाई बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द मैग्नीशियम। सो रिसीव, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लेने वाला भी 2 होना चाहिए, जैसा हमने वैलेंसी के कंसेप्ट में देखा था बेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको रिसीवर को भी 2 होना चाहिए, इसलिए हमने 2 एटम लिया है क्लोरीन का। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा, फिर मैग्नीशियम हमारा 2+ हो जाएगा और क्लोरीन हमारा इस तरह से आप बना सकते हो बेटा। आया समझ में? तो ये रहा हमारा टॉपिक, ये टॉपिक को आप अच्छे से देखो। अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।